السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، حج پالیسی کی منظوری۔ 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ سکیم کے لیے برابر کوٹا مختص۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت۔ پاکستان سٹیل مل کو نجکاری پروگرام سے نکالنے کی سفارش منظور۔ وزارت صنعت و پیداوار کو آیا کلائے عمل تجویز کرنے کے احکامات۔ فلائی جناح ایئر لائن کو بین الاقوامی روٹس پر آپریشن کی بھی اجازت۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق، انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ۔ نگراں حکومت کا کام معاونت فراہم کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا چاہیے، تعصبات سے بالاتر ہو کر قومی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ آزادی اظہار رائے کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ 9 مئی جیسے واقعات کو کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء سے خصوصی نشست۔ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، اس رابطے میں انہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی رہنما حکومت سے ملنا چاہے تو ان کی خواہش کا احترام کریں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے دوران خواتین اور بزرگوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ افراد 2 ماہ کے دوران واپس گئے ہیں۔ وفاقی وزراء مرتضی سولنگی اور سرفراز بگٹی کی نیوز بریفنگ۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن کل ختم، توسیع نہیں ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے بے دخلی حکم نامے کی منظوری دے دی۔ بڑے پیمانے پر میپنگ، جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو مکان کرائے پہ دینے والے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ڈیڈ لائن کے بعد مقیم غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط ہوں گی۔ غزہ میں نہ رکنے والی اسرائیلی جارحیت کا 23واں روز، 24 گھنٹے میں مزید 300 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 8,306 ہو گئی۔ 3,457 بچے، 2,136 خواتین اور 480 بزرگ شامل۔ 21,000 سے زیادہ زخمی، 1,050 بچوں سمیت 2,000 افراد لاپتہ۔ صہیونی فوج کی جانب سے القدس اسپتال پر بمباری کا خدشہ۔ صہیونی فوج کی جانب سے شہری آبادی کو شمالی غزہ خالی کرنے کا انتباہ، زمینی آپریشن کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ حماس کا غزہ کے مضافات میں اسرائیلی ٹینکوں کو پسپا کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی یرغمالیوں کی قیدیوں کے تبادلے کی اپیل۔ حماس نے ویڈیو جاری کر دی۔ رفح کراسنگ سے غزہ کو محدود پیمانے پر امداد کی فراہمی جاری، مزید 33 امدادی ٹرکس داخل۔ ارکان سینٹ کا فلسطینیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ارکان کی اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال مسلم امہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کو فلسطین اور کشمیر پر دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کا مالیاتی پالیسی کا اعلان، پالیسی ریٹ 22% پر برقرار۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 539 پوائنٹس کا اضافہ، 51,482 پر بند ہوا۔ معاشی ترقی کے لیے کاروبار دوست پالیسیز اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ برآمدات بڑھانے کے لیے پالیسی سازی میں بزنس کمیونٹی کی تجاویز کو اہمیت دینا ہوگی۔ حکومت کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی اسلام آباد چیمبر کے عہدیداروں سے گفتگو۔
पंजाब काबीना की आइंदा 4 माह के लिए उबूरी बजट की मंजूरी। तरक्याती मंसूबों के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए। इतलाक 1 जुलाई से होगा। स्मॉग में कमी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में लाहौर में इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, सूबाई काबीना के अरकान और इलेक्शन कमीशन हुक्काम की शिरकत। सूबे में इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए जिद्दोजहद करने वालों को सलाम पेश करते हैं। अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर है। 21 अक्टूबर को जिस जज्बे से पार्टी कायद का इस्तकबाल हुआ, उसी तरह मुल्की मसाइल को हल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वफूद से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी अवाम की सियासत करती है। अवामी एतमाद हमारी ताकत है। जियाले भुट्टोइज्म के नजरिए से जुड़े हुए हैं। भरपूर तैयारियों के साथ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में वफूद से गुफ्तगू। भारत का मिसाइल प्रोग्राम नाकामी से दो चार। 1990 में शुरू किया गया आकाश मिसाइल प्रोजेक्ट मतूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। राडार, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और सेंसर्स की खराबी का सामना। भारत का तीजा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी नाकामी का शिकार। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान दरीना तनाज़े का हल न होना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय फौज के मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद। खालिस्तान के कयाम के लिए कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रेफरेंडम। दूसरे मरहले में 65,000 से जायद वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान गुरु नानक सिख गुरुद्वारा खालिस्तान के फलक शगाफ नारे। 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट्स डाले गए थे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 7वां मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम की कोलकाता के एडन गार्डन्स में प्रैक्टिस। मैच दिन 1:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया। PCB का मुफादात के टकराव के इल्जाम की तहकीकात का फैसला। 5 रुकनी कमेटी तश्कील। इंजमामुल हक का शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी से ताउन का ऐलान। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला स्मॉग की लपेट में। फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। तामीराती काम, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं स्मॉग में इजाफे का बाइस है। तिब्बी माहिरीन का मनफी असरात से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर का मशवरा। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। हमारा काम मुआविनत फराहम करना है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशस्त में अनवारुल हक काकर ने कहा कि हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। तासुबात से बालातर होकर कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना होगा। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तालिब इल्मों के साथ 1 घंटे से जायद खसूसी नशिस्त के दौरान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अहम कौमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू और तलबा और तालिबात के सवालात के मुफस्सिल जवाबात दिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत का क़याम आईनी तरीके से अमल में आया। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। आज़ादी इजहार राय की भी कुछ हुदूद व क़यूद होती है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें एक कौम बनकर आगे बढ़ना होगा। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem.
if I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security, and others. निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से जायद अफगान मुहाजिरों को पनाह दी है। अब सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें कौमी तरक्की के अमल को तेज करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, हमें उनसे बेशुमार तवक्कुआत हैं। कौमी तरक्की में उनके किरदार को फाल करने की जरूरत है। उन्होंने मयारी तालीम के फरोग में लम्स के किरदार को सराहा और कहा कि तालिब इल्मों के साथ तालीमी नशिस्तों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। काबीना ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इनखला के हुक्मनामे की मंजूरी भी दी है। तफसील शेयर कर रहे हैं शाहरुख शफी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का मरहला बाइज़्ज़त तरीके से अमल में लाया जाए। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए। डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों का डाटा इकट्ठा किया जाए। वफाकी काबीना ने वजारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की सिफारिश पर हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी। कोटे को सरकारी और प्राइवेट स्कीम में बराबर तकसीम किया गया है। प्राइवेट हज के तहत 25,000 आज़मीन हज स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। आज़मीन की सहूलत के लिए 20 से 25 दिनों के क़याम का भी हज पैकेज मुतारफ कराया जाएगा, जिसकी मालियत बाद में मुतय्यन की जाएगी। इजलास में वजारत हवाबाजी की सिफारिश पर फ्लाई जना को बैनुल-अक़वामी रूट्स पर ऑपरेशंस की मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत निजकारी की सिफारिश पर पाकिस्तान स्टील मिल्स कारपोरेशन की निजकारी को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी दी और इस हवाले से वजारत सनत व पैदावार को हदायत की कि वो आइंदा का लाहे अमल तजवीज़ करे। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 अक्टूबर 2023 के फैसलों का जायजा लिया और हदायत की कि कुदरती गैस से मुताल्लिक कीमतों में रद्दोबदल का दोबारा जायजा लिया जाए। मीडिया ब्रीफिंग में काबीना इजलास की तफसीलात से आगाह करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि अब तक मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 लाख गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। 1 नवंबर तक जो रज़ाकाराना तौर पर वापस न गया, इसे करीब 3 बॉर्डर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं वो वापस अपने मुल्क में जाएं, लीगली हमें अप्रोच करें। 1 डॉक्यूमेंट रजीम हमने 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट कर देना है। कोई ई तस्करा नहीं चलेगा, कोई तस्करा नहीं चलेगा, कोई परमिट नहीं चलेगा। जिसने इस पाकिस्तान में आना है हमारे मेहमान होंगे, हमारे लिए बहुत अजीज़ होंगे। वो वीज़ा लेकर आएँ, वो हमारी अथॉरिटीज़ को बताए कि मैं इस सिलसिले में आना चाहता हूँ और वो आ जाए। 2 महीने का, 3 महीने का जितनी उसकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो करे और उसके बाद वो वापस चला जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि हज 2024 के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट दस्तयाब होगी। कराची और लाहौर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर भी ये प्रोजेक्ट मुस्तकबिल करीब में दस्तयाब होगा। हज 2024 के लिए पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए कोटे के तहत 1,79,210 अफराद फ़राइज़ हज सरअंजाम दे सकेंगे। कोटे को सरकारी और प्राइवेट स्कीम में बराबर तकसीम किया गया है। हज पैकेज जुनूबी रीजन के लिए 10,65,000 रुपये और शुमाली रीजन के लिए 10,75,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। हज पॉलिसी 2024 के तहत कोई भी खातून बग़ैर महरम के फ़राइज़ हज अदा कर सकेंगी। वज़ीर सकाफ़त व कौमी विरसा जमाल शाह ने कहा कि कोई भी आर्टिस्ट कानूनी दस्तावेज़ात के साथ पाकिस्तान आ सकता है। एक सवाल पर निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने बताया कि सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। मेरिट पर इंतजामी अफसरान की तैनाती की जाएगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से लाहौर में लगाए गए ज़रई स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने ज़रई स्टॉल्स में रखी गई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ज़रई माहिरीन की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को ज़रा पैदावारी सलाहियत के हामिल गंदम, कपास, तिल, मूंगफली और गन्ने के बीजों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बताया गया। अच्छे बीज और बेहतर तकनीकी सलाहियत से पैदावार में खातिर-खा इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ज़रई माहिरीन की काविशों को सराहा और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म को मुल्क में जैतून की पैदावार, पौधों की अक़साम और पैदावारी सलाहियत से भी आगाह किया गया।
مختلف اسپرے مشینز اور دیگر زرعی آلات میں بھی وزیراعظم نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں کسانوں کو زرعی اجناس کی ویلیو ایڈیشن کی ترغیب دینا ہوگی۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی ناقابل قبول، صہیونی فورسز کے حملے فوری بند کیے جائیں، نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا سراپا احتجاج ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے نہ رکنے والے مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی جارحیت میں 24 گھنٹے میں مزید 300 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 8306 ہو گئی ہے، جن میں 3457 بچے، 2136 خواتین اور 480 بزرگ شامل ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس بربریت میں 21,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، 2000 کے قریب لاپتہ ہیں، جن میں 1050 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے میں شہری علاقوں اور مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے غزہ کے القدس ہسپتال کو بار بار خالی کرنے کے لیے الٹیمیٹم کے بعد اس پر بمباری کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک کی بمباری کی وجہ سے 32 ہسپتال اور مراکز صحت میں بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی وجہ سے علاج معالجے کا عمل رک گیا ہے اور طبی عملے کے 124 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن کا دائرہ بڑھا دیا ہے اور شہریوں کو شمالی علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ شدید جھڑپوں کے بعد اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزر غزہ شہر کے مضافات سے نکل گئے۔ حماس کی جانب سے یرغمالی اسرائیلیوں کی فوٹیج جاری کی گئی ہے، جس میں یرغمالیوں کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری طرف رفح کراسنگ سے غزہ کو محدود پیمانے پر امداد کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اتوار کے روز 33 امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی درخواست پر ہونے والے اس اجلاس میں غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال اور امداد کی فراہمی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی ناقابل قبول، صہیونی فورسز کے حملے فوری بند کیے جائیں۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا سراپا احتجاج ہے۔ مختلف ملکوں میں مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ پاکستان، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، لبنان اور اسپین سمیت دوسرے ملکوں میں لاکھوں افراد نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا۔ دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں میں شرکاء نے اسرائیلی سفاکیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے غزہ پر بمباری فوری طور پر بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھام کر فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز کے ذریعے اسرائیلی مظالم کو اجاگر کیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور اسپتال پر حملے کے خلاف سینٹ اجلاس میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان نے کہا کہ اسرائیل کے وحشیانہ بمباری میں فلسطینیوں کی شہادت پر رنجیدہ ہیں۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں پر بحیثیت قوم ہمیں سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری بمباری اور نسل کشی پر دل افسردہ ہے۔ مسلم امہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادویات، بجلی اور پانی کی بندش سے فلسطینی بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی ہو رہی ہے، وہ مسلم امہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شہری آبادیوں پہ، ہسپتالوں میں، مساجد، اسکولوں پہ اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ اتنا ظلم، اتنی تباہی پچھلی کئی دہائیوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ دنیا کو اسرائیل کے خلاف بامقصد کارروائی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکیں۔ فوری طور پر اسرائیلی پیش قدمی اور بمباری کو روکا جائے، غزہ کی ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے سیف کوریڈور وہ مہیا کیے جائیں اور پوری اسلامی برادری، انسانی برادری اور بالخصوص پاکستان جو ہم امداد اپنے بھائیوں کے لیے وہاں پر پہنچا سکتے ہیں، ہم اس کی رسائی کو یقینی بنائیں۔
فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق اور جنگی اصولوں کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا کہ دھرنا اور احتجاج سردار اختر مینگل اور ان کی پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کی انتظامیہ سے اجازت کی ضرورت ہے۔ ہم ان سے مذاکرات کریں گے اور محدود مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں لاپتہ افراد کے معاملے پر بامقصد بحث ہونی چاہیے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان سے رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن کل ختم ہو جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کی بے دخلی کا فیصلہ ملکی قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی میں صرف ایک دن باقی ہے۔ حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین کو واپس بھیجنے کے لیے جامع اقدامات بھی مکمل ہیں۔ ملک میں بڑے پیمانے پر جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ 31 اکتوبر کے بعد پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا۔ پنجاب میں بھی غیر قانونی تارکین کی واپسی کی تیاری مکمل ہے۔ 1 نومبر سے ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی، گرفتاری اور ملک بدری کے لیے پولیس اور متعلقہ محکموں کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیموں کو رینجرز اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی معاونت حاصل ہوگی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے ساتھ کاروبار یا پناہ دینے پر پاکستانی شہریوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر طورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے وطن واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 382 افغان باشندے اپنے ملک گئے۔ اب تک 92,928 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ خود مختار ملکی قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کے بیان کے جواب میں کہا ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا منصوبہ تمام غیر قانونی غیر ملکیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانونی طور پر مقیم اور رجسٹرڈ تمام غیر ملکی شہری اس پلان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ 21 اکتوبر کی ڈیڈ لائن صرف غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہے۔ کینیڈین وزیر امیگریشن ریفیوجیز مارک ملر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، تاہم غیر قانونی طور پر غیر ملکی افراد کو حکومت پاکستان کے احکامات کے پیش نظر پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پالیسی ریٹ 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق کراچی میں مالیاتی پالیسی سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ستمبر میں عمومی مہنگائی توقع کے مطابق رہی۔ رواں مالی سال کی دوسری 6 ماہی میں بھی مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خریف کی فصلوں کی ابتدائی تخمینے حوصلہ افزا ہیں۔ جاری کھاتے کا خسارہ اگست اور ستمبر میں خاصا کم ہوا، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 539 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 51,482 پر بند ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ کاروباری ہفتے کا آغاز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے نہایت سود مند ثابت ہوا، جبکہ 100 انڈیکس نے 51,000 کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے ساتھ ساتھ 539 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیلی کمیونیکیشن، آئل اینڈ ریفائنری، بینکنگ سیکٹر، توانائی، انویسٹمنٹ فنڈز کے شعبوں میں زبردست تیزی رہی۔ ماہرین معیشت کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کو برقرار رکھنے اور حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 51,000 پلس ہمارا انڈیکس ہو گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کا۔ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا سائن ہے، اور یہ سائن باہر کے ملک والوں کو بھی اچھا لگے گا کہ جی پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہمیں حکومت کے جو جتنی بھی پالیسیز ہیں، جس انداز میں وہ لے کر چل رہی ہیں، یقیناً اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ملک کی جو معیشت ہے ہماری دن بدن بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ بازار حصص میں 232 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 99 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بازار حصص میں 28 کروڑ 66 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 11 ارب 44 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस का दौरा किया। लम्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल रज़ाक दाऊद और तदरीसी अमले ने यूनिवर्सिटी आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी में जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में निगरान सूबाई हुकूमत की ज़ेर क़यादत पंजाब में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने कौमी सेहत और खिदमात की वजारत से मुतल्लिक़ उमूर के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पसमानदा इलाकों में सेहत की सहूलतों तक रसाई बेहतर बनाने के लिए टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म दूर दराज इलाकों तक सेहत की खिदमात की रसाई बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीमी इदारों को खवातीन की शमूलियत बढ़ाने के हवाले से मजीद इकदाम करने की जरूरत है। टेली हेल्थ जैसे प्रोग्राम कम वसाइल रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत है। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचाव में इलाज के साथ एहतियाती तदाबीर से मुतालिक तशहीर भी इतनी ही जरूरी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि ज़हनी सेहत भी दौरे हाजिर के अहम चैलेंजेस में से एक है। एवरी हाउस गोज थ्रू सम स्ट्रेस, चाहे हेल्थ की वजह से आ जाए, चाहे फाइनेंसेस की वजह से आ जाए, वट एवर द रीज़न। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ये है कि 24% ऑफ द पीपल एट दिस टाइम आर अंडर मेंटल स्ट्रेस। 60 to 80% ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर अंडर मेंटल स्ट्रेस। पता नहीं हमने किस उनको मशीन पे लगाया हुआ है कि इल्म हासिल करो और इतनी तेज़ी से हासिल करो कि तुम अपनी सेहत, दिमागी सेहत ख़राब कर लो और ज़िंदगी भर भागते रहना। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए खवातीन में बीमारियों से मुतालिक आगाही और उनके इलाज की मालूमात के हवाले से सेहत कहानी ऐप की कामयाबी के सफर पर रोशनी डाली। बाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेहत कहानी ऐप की कामयाबी में हिस्सा डालने वाली खवातीन डॉक्टर्स को शील्ड्स दी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नई राहें खोल सकती है। कराची में नेशनल आइडियाज़ बैंक के वफ़द से मुलाकात में सदर ममलिकत का कहना था कि तेज़ तर माशी तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में जिद्दत को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल आइडियाज़ बैंक सनती और दीगर स्टेक होल्डर्स के माबैन ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने इस मौके पर IT और मसनूई ज़हानत के तवस्सुत से मसाइल हल करने की काविशों को सराहते हुए नेशनल आइडियाज़ बैंक के अरकान को तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हनीफ खालिद को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तकरीब की तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। सीनियर सहाफ़ी हनीफ खालिद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की तकरीब में निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर SN जफर बख्तावरी समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि हनीफ खालिद एक बेबाक सहाफ़ी हैं। इनके सहाफ़ती अज़्म को किसी भी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। हनीफ खालिद की आधी सदी से ज़ायद जो सफ़र है वो सफ़र बहुत शानदार है। हनीफ खालिद साहब ने एक रिपोर्टर, एक डेस्क पर्सन के तौर पर काम शुरू किया। बावजूद इस बात के कि उनके बालों में चांदी आ गई है, लेकिन जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनके साथ जो उनका रवैया है वो बहुत शफकत और मोहब्बत वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि हमें मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले अपने बड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। हनीफ खालिद एक बड़े सहाफ़ी हैं। इनके हवाले से जो भी कहा गया वो कम है। इससे कबल निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ओहदेदारान ने मुलाकात की। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, नैब कानून में तरमीम से मुतल्लिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर करदा इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि अदलिया कानून साजी का बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम होने पर ही जायजा ले सकती है। कानून साजों के मुफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार चेयरमैन तहरीक इंसाफ नैब कानून को अवामी मुफाद के मुनाफी साबित करने में नाकाम रहे। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया है कि नैब तरामीम के हवाले से दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक का मौक़िफ़ गैर यकीनी है। दरख्वास्त गुजार का ऐसा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया तो पार्लियामान के लिए किसी भी मौजू पर कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को इंतजामिया या मुकर्रना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को 2-1 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुनाते हुए नैब कानून में तरामीम को कलअदम करार दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल नैब कानून में तरामीम के हवाले से अदालती फैसले पर इंटर कोर्ट अपील की समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के निकात के लिए तैयार है। हम सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सूबाई काबीना के अरकान और इलेक्शन कमीशन के हुकाम शरीक हुए। शुरका को इंतखाबात के निकात के लिए इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में निगरान सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का निकात यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया। ये फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल करते हुए सूबे में इलेक्शन के आज़ादाना इनेकात को यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत और खिदमत का दूसरा नाम नवाज शरीफ है। 21 अक्टूबर को जिस जज्बे से पार्टी कायद का वतन वापसी पर इस्तकबाल हुआ, उसी जज्बे के साथ पाकिस्तान को मसाइल और बहरानों से निजात दिलाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख फयाज, बैरिस्टर अमजद मलिक और सहाफ़ी अजहर जावेद से मुलाकात में किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी ने जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की। आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए जद्दोजहद करने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की रिहाइशगाह पर गए और हादसे में उनके जवां साल बेटे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी उनके हमरा थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कराची में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर बातचीत की। चेयरमैन से सक्खर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवैस शाह और जिला मरीर के सीनियर नायब सदर अदील अख्तर शेख ने भी अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अपने इलाकों में इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफ किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवाम की सियासत करती है और अवामी एतमाद हमारी ताकत है। नवाब शाह में मुख्तलिफ वफूद और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हर जिला, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह तक जाले भुट्टोइज्म के नजरिए से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी के साथ आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की तरफ से इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ और आरा भी पेश की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में खानेवाल की कामयाब जलसे और दीगर अजला में पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा कि अवाम अब आजमाई हुई सियासी जमातों से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और खानेवाल की तरह दीगर अजला में भी कामयाब जलसों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने दीगर अजला में कन्वेंशंस का शेड्यूल भी जारी किया, जिसके मुताबिक कामों की 26 नवंबर, कुसूर 3 दिसंबर और लिया में 17 दिसंबर को IPP के कन्वेंशंस मुनक़िद होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़ा सिंध अमन मार्च बुदीन से टंडो मोहम्मद खान पहुंचा, जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने मार्च का इस्तकबाल किया। रैली के शुरका से खिताब करते हुए JUI सिंध के सदर राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि पूरे सिंध में हमने अमन मार्च किया है। हर जगह के लोग तब्दीली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। 15 सालों से इक़्तिदार में रहकर भी सूबे को तबाह कर दिया है।
उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शंस में आकर सिंध की हालत को तब्दील कर देंगे। सिंध की आवाम तब्दीली चाहते हैं। JUI जो वादा कर रही है इक़्तिदार में आकर सब पूरे करेगी। राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि अरबों रुपए तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए गए, लेकिन सब करप्शन की नजर हो गए। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मोहम्मद जुबैर और शाह मोहम्मद शाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ सिंध समेत पूरे पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान के जिला आवरान के इलाके खोरों में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के दौरान बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। शहीद होने वालों में ओकाड़ा के रिहायशी 37 साला नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सरगोदा के रिहायशी 22 साला सिपाही इरफान अली शामिल हैं। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने पाक फौज के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सरफराज बुगटी ने कहा कि वतन अजीज को दहशत गर्दों से पाक करके ही दम लेंगे। नाज़रीन, भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बाइस बन गया। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल पर 1990 में काम शुरू हुआ। 2017 में मोदी सरकार और मोदी मीडिया ने आकाश मिसाइल को जदीद तरीन, कम कीमत और मेड इन इंडिया का टैग लगाकर प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि सूडान, फिलिपाइन, बहरीन और कीनिया ने आकाश मिसाइल खरीदने का मुआहिदा कर लिया है, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया, अरब अमारात और मिस्र ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है। लेकिन आज तक मोदी सरकार एक भी आकाश मिसाइल डिलीवर नहीं कर सकी। आकाश मिसाइल अभी तक डेवलपमेंट फेज में है और एक्सपोर्ट के काबिल नहीं। लाइव टेस्ट के दौरान 43% मिसाइल फायर ही न हुए। इंडिया टुडे के मुताबिक 2001 में शुरू होने वाला तेजा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी नाकामी का शिकार है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की तौसीब पसंदाना पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि हल तलब दरीना तनाज़ा कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया के खित्ते पर जौहरी जंग के खतरात मंडला रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में दुनिया बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को नज़रअंदाज करना उतना ही मोहलिक और तबाहकुन साबित हो सकता है जितना कि तनाज़ा फ़लस्तीन का हल ना होना मशरिक़ वस्ता के लिए साबित हो रहा है। उन्होंने भारतीय फौजियों के हाथों कंट्रोल लाइन के करीब जाली मुकाबले में 5 कश्मीरी मजदूरों के मावरा अदालत कत्ल की मजम्मत करते हुए इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। चंद रोज कबल भारतीय फौजियों ने आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम से 5 अफराद को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो वादी में कंट्रोल लाइन के करीब जंगल के इलाके में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे और बाद में उन्हें अगले दिन कंट्रोल लाइन की दूसरी तरफ एक जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद करा ने जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब में तमाम इलाकाई सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों की आइंदा नस्लों के सियासी मुस्तकबिल की खातिर भारतीय जनता पार्टी के फिरका परस्त एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इलाकाई पार्टियां बीजेपी के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में नाकाम रही तो कश्मीरी अवाम उन्हें माफ नहीं करेंगे। नाज़रीन, खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम रेफरेंडम हुआ। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में सिख बरादरी ने आज़ाद खालिस्तान के दूसरे मरहले के लिए 65,000 से ज़्यादा वोट डाले। वोटिंग का अमल कैनेडियन वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक जारी रहा। पंजाब रेफरेंडम कमीशन ने रेफरेंडम की निगरानी की। रेफरेंडम के दौरान गुरुद्वारा खालिस्तान के फर्क शगाफ नारे लगाए। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख्स फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वाशिंगटन से वीडियो खिताब करते हुए कहा कि सिखों ने भारतीय दहशतगर्दी के हथकंडों को नाकाम बनाते हुए वोटिंग में शिरकत करके नई तारीख रकम किए। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल मुल्क में आए शदीद सैलाब को 13 माह गुजर गए। सैलाब मुतासरीन की अब भी मुकम्मल बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। हिलाल अहमर पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी और मकामी रिफाही इदारों से 7 अरब रुपए के फंड्स की अपील की है। देखते हैं अरसलान असद की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता साल के शदीद सैलाब से पाकिस्तान का 3/4 इलाका ज़ेरे आब आने से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए और तकरीबन 2000 अफराद जान बहक हुए। सैलाब से लाखों एकड़ अराजी मुतासर हुई जबकि लाखों अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा।
ان متاثرین کی بحالی کے لیے ہلال احمر پاکستان نے مختلف اداروں کے تعاون سے اسلام آباد میں فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں غیر ملکی سفیروں، امداد دینے والے مقامی اور عالمی اداروں کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہلال احمر پاکستان کے چیئرمین سردار شاہد احمد لغاری نے شرکاء کو سیلاب کی تباہ کاریوں اور ادارے کی امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں 5000 سستے مکانات، شمسی توانائی سے چلنے والے 50 فلٹریشن پلانٹس اور نکاسی آب کی مختلف منصوبے شروع کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے 7 ارب روپے فنڈز کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر انٹرنیشنل سوسائٹی فار ریڈ کراس کے نمائندے مسٹر نیکولس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ پاکستانی عوام رفاہی کاموں کے لیے اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ امید ہے کہ ہم مل کر مشکلات میں گھرے افراد کی بھرپور مدد کر سکیں گے۔ اس موقع پر رفاہی سرگرمیوں کے لیے مالی تعاون فراہم کرنے والے مختلف اداروں کے نمائندوں کو یادگاری شیلڈز بھی دی گئی۔ ارسلان صدقی کھیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انضمام الحق پر مفادات کے ٹکراؤ کا الزام ہے۔ پی سی بی نے تحقیقات کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی اپنی رپورٹ اور سفارشات پی سی بی انتظامیہ کو جلد پیش کرے گی۔ اپنے بیان میں انضمام الحق نے کہا کہ اگر کمیٹی مجھے قصوروار نہیں پاتی ہے تو میں چیف سلیکٹر کے عہدے پر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ شروع کروں گا۔ رخ کرتے ہیں کچھ دیگر اہم خبروں کا۔ دورہ پاکستان برائے جمہوریہ روانہ کی سینٹ کے صدر ڈاکٹر کالندہ فرانکوئس زیویر کی 6 رکنی وفد کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس آمد۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وفد کو سینٹ ہال آمد پر خوش آمدید کہا۔ اراکین سینٹ نے ڈیسک بجا کر مہمان وفد کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر کالندہ فرانکوئس زیویر نے وفد کے ہمراہ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر جاری سینٹ اجلاس کی کارروائی دیکھی۔ سینٹ اجلاس میں غزہ اور فلسطین کی حالیہ صورتحال پر اراکین سینٹ اظہار خیال کر رہے تھے۔ ادھر جمہوریہ ترکیے کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کیک کاٹا اور برادر ریاست کی تیز تر ترقی کی کامیاب 100 سال مکمل ہونے پر ترک سفیر کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور سعودی سفیر سمیت ممتاز اعلیٰ سرکاری اور عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ 100 سالہ تقریبات کے جشن کے موقع پر ترک صدر کا ویڈیو پیغام بھی پیش کیا گیا۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع آج کل فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں معظم الدین۔ اہل لاہور احتیاط کریں، باغوں کا شہر ان دنوں اسموگ کی شدید لپیٹ میں ہے۔ اسموگ زہریلی گیسوں، دھوئیں اور دھند کا ہوا میں شامل ہونے کا نام ہے، جو فضائی آلودگی کی ہی ایک قسم ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے اوپر تجاوز کر چکا ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری تعمیراتی کام، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں اسموگ میں اضافے کا باعث ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ فوٹو کیمیکل اسموگ ہے، جو جیسے ہمارے ویہیکلز جو ان کا امیشن جو دھواں چھوڑنے والی جو دوسری گاڑیاں جو ہے ان کا امیشن جب ہوتا ہے تو وہ سورج کی روشنی سے عمل کرتی ہیں، اور جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی لیول اوپر جانے کا امکان ہوتا ہے۔ آنے والے 3 سے 4 روز میں لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، تو یہ صورتحال پھر لگتا ہے کہ اسی طرح رہے گی۔ لاہور میں محکمہ تحفظ ماحولیات کے ہر گھنٹے کے بعد ریکارڈ کیے گئے ڈیٹا کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ مال روڈ پر 464، جبکہ کینٹ میں 396 اور کنال روڈ پر 340 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی اسموگ کے باعث شہری آنکھوں اور گلے کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب کابینہ نے رواں مالی سال کے آئندہ 4 ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں نومبر 2023 سے فروری 2024 تک 2076.2 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں نومبر 2023 سے فروری 2024 کے لیے سرپلس بجٹ کی منظوری دی گئی، جس کا مجموعی حجم 2076.2 ارب روپے ہے۔ بجٹ میں 351 ارب روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ میں 50 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صحت کے شعبے کے لیے 208 ارب روپے، تعلیم کے شعبے کے لیے 222 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ کی ترقی کے لیے 10 ارب روپے، نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے، پنجاب ٹیکس
टेक्स्ट बुक के लिए 5 अरब रुपए और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। काबीना ने वर्कर्स की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने की मंजूरी दी, जबकि इंसदाद स्मोक इकदाम के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने कहा, अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से जायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को सास करार दिया गया जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से जायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे और आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से जायद एहलकार अपना यहाँ ड्यूटी देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत ने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की सदारत में ज़म अज़ला के हवाले से सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में ज़म अज़ला की माशी बहाली के लिए मुजव्वज़ा इकनॉमिक डेवलपमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़म अज़ला में तालीम के शोबे की तरक्की के लिए एजुकेशन प्लान तैयार किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि ज़म अज़ला की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। इन इलाकों की महरूमियों के अजाले के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन व अमान का क़याम है। निगरान वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा है कि मुल्क में मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई शोबे समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इस्लामाबाद में USAID की ताउन से मुनक़िदा प्री COP 28 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत का शोबा खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी है, इसलिए फसलों पर तवज्जो दे रहे हैं जो मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला कर सकें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम डैम्स और आबी तहफ़्फ़ुज़ समेत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भी कोशिश हैं। तकरीब में USAID और IWMI के नुमाइंदों ने पाकिस्तान के लिए पानी, खुराक और मौसमी तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे एक्शन प्लान की ज़रूरत पर जोर दिया। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की अगर बात की जाए तो लेह में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अनंतनाग में 3, पुलवामा 4, शुपिया 3, जबकि बारामूला में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 17, कराची 22, पेशावर 16 और कोयटा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। 5वीं एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप यकम नवंबर से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू होगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम अहमद ने कहा कि चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 26 ममालिक के 600 के करीब खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 5 रोजा चैंपियनशिप में कैरोगी और पोम्जे के इवेंट्स होंगे। एशियन ताइक्वांडो यूनियन के सदर प्रोफेसर क्यू सिविक ली ने कहा कि एशियन सतह के इवेंट की मेजबानी पर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान में इस खेल के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। चीन में एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एथलीट हैदर अली गुजरांवाला पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहरियों की जानिब से ढोल की ताप पर भंगड़े डाले गए और फूल निशावर किए गए। हैदर अली ने एशियन पैरा गेम्स के डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरांवाला की आवाम ने पहलवानों की तरह इस्तकबाल किया, जिस पर खुशी है। अगर बेहतर सहूलियात मुहैया की जाए तो मुस्तकबिल में मजीद तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम चट्टग्राम से ढाका पहुंच गई है। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश वुमेन्स क्रिकेट टीमें 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज में हिस्सा लेंगी। वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। इससे कबल चट्टग्राम में पाकिस्तान और बांग्लादेश वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज मेजबान टीम ने 2-1 से जीती थी। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए। आपका शुक्रिया।